Good morning, students. Now, in the same chapter, see, observe the ponds and lakes nearby which fish are breeded and kept. Here, for feeding the fish, some fertilizers and manures are added to the water. Due to their effect, the number of algae and other water plants is increased so much that the whole water of the pond look green. After some time, there is a foul smell also. Why it is happens? Because see, we know that the aquatic animals, they take oxygen from water. The oxygen which dissolve in water, the aquatic animal like fish and the plants, they take oxygen from the water. But when to breed the fishes, when added fertilizers are added, then the number of fishes also increases, and as well as the algae and the small plants, they also increases, and they all consume oxygen, and due to the lack of oxygen, the water become green and the foul smell also comes. Okay, so change due to an increased number of algae can decrease the amount of dissolved oxygen in the water. So other organisms in the water do not get sufficient oxygen, due to which they die, and this state is called eutrophication. Okay, so this state is called eutrophication. Eutrophication means what? When in the water number of algae and other aquatic animals increases and oxygen become less, due to that they start dying, and that is called eutrophication. You must be knowing of the microorganisms which can fix the atmospheric nitrogen such that it increases the fertility of the soil. We all know that like the oxygen and carbon dioxide, the plants and the other living organisms, they consume directly. They can take it directly, but nitrogen plant, they cannot observe the nitrogen present in the atmosphere, and we know that in our atmosphere 78% of nitrogen present, but plant cannot consume that nitrogen directly. So for that, the microorganisms like the algae and bacteria, they convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound, and that nitrogenous compound mix with the soil, and the plant roots get the nitrogenous compound, and that is beneficial for the growth of plant. So in a paddy field, when the farmers fill it with water, then large amount of green colored microorganism, that is what algae, so algae are formed in water. These are blue green algae. These also help in the fixation of atmospheric nitrogen and increases the amount of nitrogen present in the land. Farmer use microorganism and blue-green algae as biofertilizer. See, fungi, that is the algae, bacteria, fungi, they are what? They are living organisms. Okay, they are microorganisms. So, the microorganisms, they work like a fertilizer for the what? Soil. So they are called biofertilizer, and this fertilizer is used to increase the yield of the crop. मतलब फसल को बढ़ाने के लिए इसको use करते हैं. Now the crop rotation. When some type of crop is grown again and again, for example like the paddy is grown again and again, then the fertility of the soil decreases. Obviously, the fertility of the soil decreases because it becomes for only one, that is for paddy only. To maintain the fertility of the soil, different type of crop must be shown one after another. ठीक है, अब देखो सॉइल की अगर फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है, तो जैसे फर्स्ट टाइम क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, सीजनल वाइज क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं.
पहले पैडी लगा दिया, पैडी के बाद वो लोग क्या करते हैं, वीट लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मस्टर्ड लगाते हैं। तो ऐसे सीजनल वाइज क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं या उनके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, है ना। तो ये सीजनल वाइज जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, एक के बाद एक क्रॉप हो गया, उसके बाद डिफरेंट क्रॉप होता है, देन उसके बाद डिफरेंट क्रॉप्स होता है। तो ऐसे जब क्रॉप रोटेशन होता है, दैट इज़ व्हाट दैट क्रॉप रोटेशन इज़ यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो देखो यहाँ पे यूजुअली लेगुम क्रॉप क्या होता है आपका, जैसे आपके शीड वाले होते हैं, पीज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गए, है ना, इज शोन आफ्टर ग्रेन क्रॉप। मतलब जैसे ग्रेन, वीट हो गया, पल्सेस हो गए, दाल हो गया, है ना, चावल हो गया। तो ग्रेन क्रॉप्स के बाद फिर क्या करते हैं, लेगुमिनस क्रॉप लगाते हैं, मटर के लगा दिए, है ना, मूंगफली वाला लगा दिए, ठीक है, सोयाबीन लगा दिए, है ना। सो इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, सॉइल में नाइट्रोजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, जब एक और 2-3 टाइप के क्रॉप्स एक साथ लगाए जाते हैं, है ना। और इन द फील्ड इट इज़ कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। व्हेन 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डेफिनेट रोज, इट इज़ कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग। एक रो आपने दूसरी फसल की लगाई, फिर सेकेंड रो में कुछ है, फिर थर्ड रो में दूसरा लगा दिया। तो ऐसे जब हम रो वाइज क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग, है ना। एग्जाम्पल के लिए पहले वीट हो गया, उसके बाद क्या लगाया, एक रो में ग्राम, उसके बाद क्या लगाया, मस्टर्ड, है ना, या फिर ग्राउंडनट लगा दिया, उसके साथ में क्या लगा दिया, सनफ्लावर। नाउ द इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई, पानी डालना। वाटरिंग ऑफ क्रॉप इज नेसेसरी एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। वी ऑल नो विदाउट वाटर द फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल। The process of providing water to the plant artificially is known as irrigation. देखो पानी तो बारिश में जब पानी गिरता है तो वो पानी मिलता ही है, लेकिन ऑफ सीज़न में जब रेनी सीज़न नहीं है तब पानी कहाँ से मिलेगा, क्रॉप्स को पानी कहाँ से मिलेगा, तो वो पानी हमें डालना पड़ता है, फार्मर्स को पानी क्या होता है, डालना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इरीगेशन। आर्टिफिशियली मतलब फार्मर्स उस वाटर को डालते हैं फसलों में, दैट इज़ कॉल्ड इरीगेशन। When the water from irrigation, the plant perform the activity of absorption of minerals, photosynthesis and other biological function, है ना। हमको पता है ना कि जब प्लांट्स में पानी जाता है तो प्लांट क्या करते हैं, रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में जो वाटर में जो मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं उसको क्या करते हैं, वो सॉल्ट डिज़ोल्व होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर वाटर को लेके फिर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के थ्रू लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट बायोलॉजिकल फंक्शन। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। अब जैसे कि किसी फसल को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आपके चाहिए, एक तो डिपेंड करता है क्रॉप्स के ऊपर और सॉइल के ऊपर भी। जैसे कि अगर काली मिट्टी है तो वो पानी क्या करती है, अब्जॉर्व सोख के रखती है, उसमें पानी रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें पोर्स होते हैं ना। और आपकी अगर मान लो रेड सॉइल है तो उसमें पानी बह जाता है, तो उसमें पानी कम लगता है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे सॉइल का नेचर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय द ग्रोन क्रॉप्स। द समर सीजन क्रॉप्स, खरीफ समर में जो लगता है आपका, मस्टर्ड लगता है, वीट लगता है, सनफ्लावर लगता है ना। तो खरीफ क्रॉप्स नीड मोर वाटर, क्योंकि समर है तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यू मस्ट हैव सीन द पैडी फील्ड, है ना, फील्ड विद द वाटर। आपने देखा ना चावल के, धान के जो खेत होते हैं पूरे पानी से भरे होते हैं। राइट फ्रॉम द प्लांटेशन ऑफ शीडिंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, मतलब जब शीड्स लगाते हैं उससे लेके जब तक उसकी कटिंग होती है तब तक वो पूरा जो खेत होता है वो किससे भरा होता है, वाटर से। वेयर एज द विंटर सीजन क्रॉप्स, रबी, अब विंटर सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं डू नॉट नीड मच वाटर। विंटर के जो होते हैं, ठंड के जो होते हैं, उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि विंटर सीजन में जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, तो उसमें नमी होती है, तो नमी होती है तो सॉइल का उतना वाटर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। देखो हम सिंचाई, जो फार्मर्स होते हैं वो इरीगेशन कहाँ से करते हैं, वेल से करते हैं, है ना, कुएं से करते हैं, फिर आपका पंप से करते हैं, रिवर से करते हैं, पंप से करते हैं, डैम से करते हैं, ठीक है।
देखो, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन दे आर फील्ड ऑन लार्ज स्केल. इरीगेशन इज डन थ्रू द कैनल्स फ्रॉम द डैम बिल्ट ऑन द रिवर, है ना. हमको सबको पता है कि जो लार्ज सोर्स है वो क्या होता है, आपका जो होता है कैनल, नहर से पानी आता है. नहर में होती है ना, नदी का पानी कहाँ आता है, कैनल्स में आता है, नहरों में आता है, और वो वहाँ से कहाँ होता है कि जो आपका फार्मिंग फील्ड तक जाता है. ठीक है. ऑन अ स्मॉल स्केल इरीगेशन इज डन फ्रॉम पॉन्ड्स. अगर आपको स्मॉल इरीगेशन है, मतलब ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, तो वो आप उसको तालाब के पानी से कर सकते हो, वेल कुएं के पानी से कर सकते हो, एंड पाइपलाइन के थ्रू भी कर सकते हो. फ्रॉम द वेल वाटर इज पुल्ड अप विद द हेल्प ऑफ पुली और अ सी सॉ लिफ्ट, ढेकुली. ठीक है. अगर वेल कुआं है तो कुएं मालूम होगा, यहाँ पे क्या होता है, पुली लगा होता है, तो उससे क्या होता है, पानी को ऊपर पुल किया जाता है. ठीक है. और वाटर व्हील और वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड थ्रू कैनल्स. तो यहाँ से कुओं से क्या करते हैं, पानी को, छोटी छोटी कैनल्स बनी होती है, पतली पतली नहर जैसी बनी होती हैं, उनमें पानी को डालते जाते हैं, और वो पानी कहाँ तक जाता है, आपके खेतों में चला जाता है, फील्ड में चला जाता है. ठीक है. उसका क्या होता है, फॉर इरीगेशन मशीन्स एज मोटर पम्प्स एंड सबमर्सिबल पम्प्स आर ऑल्सो यूज्ड. अगर खेत बहुत बड़ा है ना, इफ़ द क्रॉपिंग फील्ड इज मोर, सो दैट टाइम दे आर यूजिंग मोटर पम्प्स और सबमर्सिबल पम्प्स फॉर द इरीगेशन water from the water source. Okay, so it is beneficial to irrigate the crop in a right time and right quantity. What would happen if the crops are irrigated irregularly? मतलब जैसे आज पानी डाल दिया, फिर आप 10 दिन बाद पानी डाल रहे हो, है ना, या फिर आप एक साथ बहुत पानी डाल दे रहे हो, फिर आप डाल ही नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा, सारे क्रॉप्स आपके सूख जाएंगे, या तो फिर क्या होंगे, वो ख़राब हो जाएंगे. इन बोथ द केसेस क्रॉप्स वुड फेल. इफ़ देयर इज़ मोर इरीगेशन than needed, then it would harm the soil aeration. अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है तो वो सॉइल भी क्या होगा, मतलब सॉइल बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, और जो आपके क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाएंगे. When water accumulated in the field for a long period, there is a shortage of transfer of air in the soil. अगर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो सॉइल में जो एयर होता है वो नहीं रह पाता, फिर एयर हट जाता है. Due to which the root of plant do not get sufficient oxygen and start decaying, and that is called flood. उसको हम क्या बोलते हैं, बाढ़, सूखा, फ्लड बोलते हैं. ठीक है, बाढ़. Okay, so now today I am finishing my class here, and the new techniques of irrigation I will explain you tomorrow.